فتنہ الخوارج کو افغان حکومت کی سرپرستی ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب برائے اقوام متحدہ منیر اکرم نے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان فتنہ الخوارج کے خلاف قومی سطح پر کارروائی کرتا رہے گا۔ پاکستان علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ٹی ٹی پی کے خطرے کو ختم کیا جا سکے۔ اسرائیل ایک سال میں فلسطینی علاقوں سے قبضے کو ختم کرے۔ یو این جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ جنرل اسمبلی میں اس قرارداد کے حق میں 124 اور مخالفت میں 14 ووٹ آئے، جبکہ 43 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ پاکستان، ترکیہ، قطر اور دیگر ممالک نے قرارداد مشترکہ طور پر پیش کی۔ قرارداد کی مخالفت کرنے والے ممالک میں امریکہ اور اسرائیل بھی شامل تھے۔ جنرل اسمبلی نے یہ قرارداد ایک ایسے وقت میں منظور کی جب آئندہ ہفتے 26 ستمبر کو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرنا ہے۔ اسی روز فلسطینی صدر محمود عباس بھی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی فلسطین کے حق میں قرارداد کا خیر مقدم۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق قرارداد نے واضح کر دیا اسرائیل کا قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ قرارداد نے واضح کر دیا کہ اسرائیل کا 57 سال کا قبضہ اب مزید جاری نہیں رہ سکتا۔ قرارداد پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل قبضہ علاقوں سے اپنی فوج واپس بلائے۔ اسرائیل مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں یہودی آباد کاری کو بھی فوری روکے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ ریاض سے عرب میڈیا کے مطابق سعودی مجلس شورا کے سالانہ اجلاس سے اپنے والد خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان عبدالعزیز کی جانب سے خطاب کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیل کی سنگین حملوں کو شدید مذمت کرتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین سعودی عرب کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششوں کے لیے راہیں ہموار کر رہا ہے۔ لبنان میں پیچیدہ دھماکوں سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ سلامتی کونسل کے صدر کے مطابق لبنان میں پیچیدہ دھماکوں پہ سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ لبنانی وزیر اعظم نجیب میقاتی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ابھی ملکی سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں تو وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تاڑر کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر تک چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ اسلام آباد میں آل پاکستان لائرز کنونشن کے اختتام پر وفاقی وزیر قانون نے صحافیوں سے گفتگو کی اور کہا کہ واضح کر چکا ہوں کہ 25 اکتوبر تک قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان ہیں۔ 26 اکتوبر کو سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج چیف جسٹس بن جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی ڈرافٹ بنے گا اس پر پارلیمان کے اندر بھی اتفاق رائے کی کوشش کریں گے۔ مجوزہ ڈرافٹ میں کچھ چیزیں مزید بہتر ہونے والی۔ جسٹس منصور علی شاہ ہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے تمام افواہوں کو رد کر دیا۔ بلاول بھٹو نے پیپلز لائر فورم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترامیم کا زیر گردش مبینہ مسودہ اصل نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی مجوزہ آئینی ترامیم پہ آئینی عدالتوں کے قیام کے حق میں ہے۔ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی حمایت نہیں کرتی۔ آرٹیکل 63A کے فیصلے نے اراکین کو مرضی کا ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ مسترد کر دیا۔ سربراہ JUI نے کہا کہ مسودہ کسی کو دیا گیا کسی کو نہیں، جو مسودہ ہمیں ملا اسے پڑھا وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اس کا ساتھ دیا تو یہ ملک و قوم کے لیے بہت بڑی خیانت ہوگی۔ اب تو حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی مسودہ تھا ہی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بانی PTI کی اڈیالہ جیل میں مبینہ گفتگو پر جواب دینے سے گریز کیا۔ تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ کسی کو پرووائڈ کیا گیا کسی کو نہیں کیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ لیکن جو کچھ بھی ہمارے حوالے ہوا اور ہم نے جو اس کا مطالعہ کیا ہے تو اس کے مطالعہ کرنے سے ہمیں کسی طریقے سے بھی کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں بنا۔ یہ قوم اور ملک کی امانت میں اس سے بڑی خیانت اور نہیں ہو سکتی تھی۔
हुकूमत की मौलाना को मनाने की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI फजल रहमान से मुलाकात, आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मुशावरत की, मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू भी की। सैनिटर इरफान सदीकी कहते हैं चीफ जस्टिस या जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही। उम्मीद है आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान राजी हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी इस अमल में मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद आईनी तरामीम का अपडेटेड मुसव्वदा तैयार कर लिया है। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का दावा, कहते हैं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा किया जा रहा है, मामला जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। PTI ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर सियासत की। मौलाना फजल रहमान से भी आईनी तरामीम पर मुशावरत जारी है। वज़ीर क़ानून का आईनी तरामीम के मुसव्वदे से मुताल्लिक़ किरदार लायक तहसीन है। वसूल को एक बेहतर शेप दी जा रही है, उसमें अगर आप अपनी बीच में डिमांड ये लेके आएंगे कि हमारे लीडर को छोड़ो, तो आपकी ये NRO की ख्वाहिश पुरानी है, इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे मत इस्तेमाल करें। और ये जो दायरा कार है मुशावरत का, ये वसी किया जा रहा है। मौलाना से भी हमारी जो है वो इंगेजमेंट जारी है। और जो लॉ मिनिस्टर की टीम ने मुसव्वदा तैयार किया, उसमें भी बातें की गई, ये पता नहीं मुसव्वदा कहाँ से आया, भाई उनकी टीम ने बनाया। तो ये मुसव्वदा तमाम लोगों के पास, सियासी जमातों के पास मौजूद था, जिसमें JUIF के पास ये मौजूद था, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था। इसीलिए इस पे शिक बाय शिक बात हुई है। इस पे मज़ीद मशावरत करके, कंसेंसस डेवलप करके इसको आगे बढ़ना चाहिए और इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। JUI और PTI पार्लियामेंट के अंदर जो करेंगे मिलकर करेंगे, कोशिशें मामलात पर मुतफ़िका मौक़िफ़ अपनाएं। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं मुल्क के जो हालात हैं इसके बारे में सभी को मालूम है, अपोजिशन को मुत्तहिद होकर इकट्ठे आवाज़ उठाना होगी। फैसला किया है तमाम चीज़ों को मुशावरत से आगे बढ़ाएंगे। कि आप जो भी कानून साजी लाए उसके ऊपर ओपन डिबेट हो, उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके ऊपर मुख्तलिफ आरा है, ताकि अगर वो आवाम की इंटरेस्ट पे हो, अगर आप चंद महसूस लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करें और इसके लिए कानून बनाएं और पर्सन स्पेसिफिक हो, इस कानून साजी को हम किसी भी तौर में नहीं मानते। जो भी आईनी तरमीम होगी वो हम उस पर मुश्तरक। वेलकम बैक नाजरीन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी तामुन पर बातचीत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रूस से रिवायती और दिफाई तामुन को फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा किया। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाक फ़ौज की कोशिशों को सराहा। रूसी नायब वज़ीर आज़म की ख़ित्ते में फ़रोग़, अमन के लिए अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी बादशाह चार्ल्स सोइन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। किंग चार्ल्स की वज़ीर आज़म को दौलत मुश्तरका हुकूमती सरबराहान इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किंग चार्ल्स की दावत को कबूल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दौलत मुश्तरका की तारीख का ये एक अहम इजलास होगा। शाह चार्ल्स की बादशाहत संभालने के बाद दौलत मुश्तरका का पहला इजलास होगा। दौलत मुश्तरका इजलास की सदारत बरतानवी बादशाह चार्ल्स खुद करेंगे। रूसी नायब वज़ीर आज़म की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। रूसी नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और रूस के दरमियान रेल और रोड के जरिए रवाबत को बेहतर बनाने पर बातचीत। रूसी नायब वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें करेंगे। आलमी हालात के तनाज़ुर में रूसी नायब वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज अडयाला जेल में समाअत होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस पर समाअत करेंगे। केस से मुताल्लिक़ तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी से। जी खालिद। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज एक बार फिर जो है अडयाला जेल में समाअत होने जा रही है और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना जो है इस रेफरेंस पर समाअत करेंगे। इस मौका पर बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज जो समाअत हुई थी उसमें वकला सफाई की अदम मौजूदगी के बायस जो है नायब तफ्तीशी अफसर जो इस रेफरेंस में 35वें और आखिरी गवाह हैं उन पर जो है जिरा का अमल मुकम्मल ना हो सका और आज जो है नायब तफ्तीशी अफसर पर जो है जिरा का
दोबारा से आगाज किया जाएगा और जिरा के अमल को कोशिश किया जाएगा कि मुकम्मल किया जाए। इस मौका पर जो है एहतसाब अदालत के जज इस्लामाबाद जब यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी तरह जो है वकला सफाई और जबकि नैब प्रोसिक्यूशन टीम यहाँ पहुंचेगी तो बाज़ाब्ता तौर पर इस रेफरेंस पर समाअत का आगाज होगा और ये 35वें और आखिरी गवाह हैं जिन पर जिरा का अमल जारी है। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 बिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर नोटिस जारी, समाअत 26 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आवाम की टैक्सी से बनने वाला न्यू सब्जल रोड का मंसूबा मुकम्मल होने से पहले ही टूट फूट का शिकार, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने की वजह से फुटपाथ और रोड डिवाइडर टूट गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ बाज़ई से। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में जो है तरक्याती मुंसिबियत तातुल के शिकार होने के साथ साथ उसमें नाकिस मटेरियल भी जो है वो इस्तेमाल हो रहे। इस वक्त में मौजूद कोयटा के न्यू सब्जल रोड पे जहां तरक्याती मंसूबा अब तक जो है वो मुकम्मल न हो सका, साथ ही में इसमें जो है नाकिस मटेरियल भी जो है वो इस्तेमाल हो रहे। रोड जो है वो टूट फूट का शिकार हो गई, इसी के साथ फुटपाथ जो है वो टूट गए। इस वक्त एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, मंसूबा अब तक मुकम्मल न हो सका, इसके साथ ही जो है फुटपाथ जो है वो टूट फूट के शिकार हो रहे। जी सर, भाई सारा ठेकेदारों का कसूर है, ये सारा काम नहीं करते। अभी मेरा पीछे सार गलियां बंद है, सारा बराबर कुछ काम नहीं करते। अरबों खरबों के लोग कहते कुछ करते नहीं है, बस सिर्फ पैसे और आवाम को लूट मार और कुछ नहीं, काम नहीं। जी बिल्कुल, जैसे आप इस्लाम का कहना है कि ठेकेदार जो है वो इंतहाई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतल्लिका ठेकेदार के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। जी, पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की तंजीम एप्सप का एक और एहसास। फ्रांस के शहर तोलूस में एप्सप का 25 रुकनी आला सतह का वक्त यूरोपियन एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन की दावत पर चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में शरीक है। पाकिस्तानी पवेलियन तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। दुनिया भर के माहिरीन तालीम ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। तालीम और तहकीक के मैदान में आला मयार के हुसूल का अज़्म पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज को यूरोप ले गया। फ्रांस के शहर तौलूस के कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा 4 रोज़ा यूरोप की आला तालीमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पेवेलियन सज गई। दुनिया भर से आने वाले मुमताज माहिरीन तालीम ने पाकिस्तानी पेवेलियन में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। एप्सप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने पाकिस्तानी पेवेलियन के इफ्तिताह के मौके पर कहा, तारीख में पहली मरतबा किसी भी यूरोपीय तालीमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के जरिए तहकीकी मैदान में अमली शराकतदारी के मुआहिदे हुए हैं। एप्सप के प्लेटफॉर्म से गुज़श्ता बरस तुर्की में यूरेशिया हायर एजुकेशन समिट से आला तालीमी और तहकीकी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का सफर शुरू हुआ। अब फ्रांस में पाकिस्तान की निजी जामियात के नुमाइंदा वफ्द की शिरकत से पाकिस्तानी तुलबा और असातिज़ा के लिए यूरोप के साथ तजुर्बात के तबादले का आगाज हुआ है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज इससे कबल पाकिस्तान का 25 रुकनी आला सतह का वफद यूरोपियन एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन की दावत पर चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की क़यादत में फ्रांस के शहर तौलूस पहुंचा। पाकिस्तानी और यूरोपीय तालीमी इदारों के दरमियान तहकीक और महारत के तबादले के 20 मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं। यूरोपियन एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन गुज़श्ता 34 साल से तालीमी मैदान में दरपेश चैलेंजेस और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस साल दुनिया भर से 7000 से ज्यादा माहिरीन तालीम और 1400 से ज्यादा जामियात के वफूद शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में खुसूसी तवज्जो का मरकज बनने वाले पाकिस्तानी पेवेलियन के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट ने कलीदी किरदार अदा किया है। वफद में ग्रीन यूनिवर्सिटी, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, प्रिस्टन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, गिफ्ट यूनिवर्सिटी समेत मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स शामिल हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब हुकूमत का सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की गई। सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ा रहा है, कोई नहीं, तो कोई सब्जी कटवा रहा है। स्कूलों के मसला का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पहले मरहले में 14,800 स्कूल आउटसोर्स कर रहे हैं। दफ्तर में बैठकर फैसले नहीं करती, फील्ड में जाती। उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था, उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी। साइज पेपर का छोटा करके, और तरीके लोग ढूंढ लेते, जिन्होंने पैसा बनाना होता है उनके पास बहुत तरीके होते हैं।
जो वर्क फोर्स में गवर्नमेंट की आ गया वो परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा, पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा, क्या पढ़ा रहा है, बच्चों से को सब्जी दे रहा है कि ये काटो स्कूल में बैठ के, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तकरीबन 49,000 समथिंग स्कूल्स से हम 14,000 स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम इनको इनकी क्वालिटी, इनकी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। उसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग और ओवरसाइट हमारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि स्कूल उठा के किसी को दे दिया उसके बाद हम अब आराम से घर बैठ जाएंगे। दफ्तर में बैठ के फैसले नहीं करती, पहले फील्ड में जाती हूँ और खुद लाहौर जलसे की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। इजाज़त का बाद में देखेंगे। फैसल करीम कुंडी का गवर्नर हाउस रास उनको नहीं आ रहा। आनी तौर पर गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, इसकी कोई अहमियत नहीं। गवर्नर पर्ची पर आया हुआ बंदा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है और एक गवर्नर हाउस में बैठा है। बोले निगरान तौर पर की गई भर्तियाँ ख़त्म कर देंगे, हम नौकरियाँ नहीं रोज़गार पर तवज्जो देंगे, हम आवाम को बाइख्तियार बना रहे हैं। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर पंजाब हुकूमत ने शहरियों को रिलीफ पहुंचाना शुरू कर दिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का पेट्रोली मसनूआत की कीमतों में कमी पर पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी कराने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर ट्रांसपोर्ट किरायों में 40 से 250 रुपए तक कमी की गई। शहरियों की सहूलत, जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स की शामत आ गई। विफाकी हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के ऐलान पर पंजाब में इंतजामिया हरकत में आ गई। 37 शहरियों के लिए निजी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का नया शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। जायद किराया वसूल करने पर 3,58,500 रुपए जुर्माने, 30 गाड़ियां बंद कर दी गईं। मुसाफिरों को 1,05,540 रुपए जायद वसूल किया गया, किराया वापस कर दिया गया। पंजाब के 41 शहरों में गाड़ियों की चेकिंग, किराया नामों को चेक किया गया, खिलाफ वर्जी पर फौरी किराया वापस किया गया। इस बुलेटिन से इतना ही।